Welcome to this lecture, and this lecture about the random variables. So, in this lecture, we discuss about the random variables, types of random variable, probability distribution function of random variable, and probability density function. Let us start with the random variable. Mathematically, random variable is neither random nor a variable. Mathematically, random variable is neither random nor a variable. मैथमेटिक की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग random variable is neither random nor a variable. It is used for the what is the use of the random variable? It is used for mapping from sample space into real line or a complex plane. इसका यूज करते हैं मतलब सैंपल स्पेस के पॉइंट्स को रियल लाइन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैप करने के लिए। यदि रियल लाइन पे एक सैंपल पॉइंट्स को मैप करेंगे तो इट इज कॉल्ड रियल रैंडम वेरिएबल। इफ इट इज सैंपल पॉइंट इज मैप into the complex plane points, it is called complex valued random variable. Okay, so to define this random variable, we must have a probability space. Probability space set consists of sample S, F, and P. S is the non-empty set of elementary events. Okay, and F is a subset of S, and F is a probability measure on the set in F. Okay, so mathematically, let X colon S राइट एरो टू आर। इसका मतलब x एक फंक्शन है जो s के पॉइंट को r में मैप करता है। ओके, सो x एक्चुअली रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ओके, be a function mapping the sample space into real line such that for each small s is the sample point of capital S. There, there exists a unique number on real line. Okay, then x is called a random variable। क्योंकि आपने रियल नंबर से मैप किया है तो ये रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल एसोसिएट द पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस विद द रियल नंबर्स। ओके, सिमिलरली यू कैन डिफाइन द कॉम्प्लेक्स वैल्यू रैंडम वेरिएबल। अब इसको क्या है कि ये एक सैंपल सेट है, इस सर्किल में ये सैंपल सेट है। ओके, इसमें पॉइंट S1, S2, SI SN एन पॉइंट है मान लीजिए आप। ओके, अब क्या होगा, ईच पॉइंट को हम, ये है रियल लाइन। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं मैप होंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन मैपिंग रूल। ओके, एंड नोटेशन का क्या है, रैंडम रिप्रेजेंट बाय अपर केस लेटर। जैसे कि रैंडम वेरिएबल x, सो आई विल यूज कैपिटल X। रैंडम वेरिएबल y इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y, and values of random variable denoted by lowercase letter. So if I am writing capital X equal to small x, means small x is the value of random variable at that particular moment. Okay, a particular association. Okay, so this is, you understand by this pictorial representation what is the random variable. Random variable is a function, it is not a variable. Mathematically it is neither random nor variable. ओके, कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू मैप सैंपल स्पेस इनटू रियल लाइन और इनटू कॉम्प्लेक्स प्लेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल यू आर गोइंग टू deal with. Okay, so random variable, so this is about the random variable। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो हम इसको
3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एंड अनदर इज मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल मींस mixed type random variable consists of discrete random variable plus continuous random variable. So one by one we will discuss. So discrete time random variable की definition है, a random variable x is called discrete if there exists a countable sequence of distinct real number x such that probability of capital X equal to small x must be equal to 1 for all small x. ओके, कोई एक रैंडम वेरिएबल हो जितने वैल्यूज स्मॉल एक्स के ले रहा है, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए. सो आई विल कॉल इट इज ए काउंटेबल होगा, सम करना है मतलब काउंटेबल है तभी सम कर सकते हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स को यू कैन नॉट सम. ओके, इन जनरल. सो ये मतलब काउंटेबल सीक्वेंस होना चाहिए जो एक्स कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यूज काउंटेबल सीक्वेंस होना चाहिए कितने. सो प्रोबेबिलिटी P ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैपिटल एक्स टेक स्मॉल एक्स वैल्यू. ओके, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आर पीडीएफ या रैंडम वेरिएबल ऑफ डिस्क्रीट नेचर इज गिवन बाय दिस फार्मूला. ये जनरलाइज फार्मूला है. जैसे रैंडम वेरिएबल इज कंप्लीटली कैरेक्टराइज या डिस्क्राइब बाय इट्स पीडीएफ. ओके, सो रैंडम वेरिएबल को कैरेक्टराइज करने के लिए यू हैव टू डिफाइन ए पीडीएफ. सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल एक्स सबस्क्रिप्ट कैपिटल एक्स ऑफ एक्स. दिस इज नोटेशन फॉर द पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. कुछ बुक्स में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज किया जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, या कुछ बुक में पीडीएफ. पीडीएफ इज जनरली आई विल कॉल पीडीएफ. इट इज फॉर द आइदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके, सो इसको क्या करते हैं, इसका f of x is a sum of probability of event capital X take xi into del x minus xi, where del xi x minus xi is a डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है. उसकी डिफिनेशन होती है x minus xi will take 1 it is 1 when x equal to xi, 0 otherwise. ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की एक नो सॉरी, ये क्रोनकर डेल्टा फंक्शन की डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है कि एरिया शुड बी del x xi शुड बी 1. ये क्रोनकर डेल्टा फंक्शन के बारे में बता रहा था. ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. So let us take one example of discrete random variable and describe this discrete random variable. A fair coin is tossed twice. Let the random variable x represent number of heads. तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा. या दोनों इवेंट में हेडेड आ सकता है, एक इवेंट में हेड दूसरे इवेंट में टेल, पहले टॉस में टेल दूसरे टॉस में हेड, या दोनों टॉस में टेल. ये है पॉसिबल इवेंट्स of this experiment if you are a fair coin tossed twice. Okay, so this is a sample space. इस तरह से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं. अब क्या है कि let the random variable x represent number of heads. It is a mapping rule. Okay,
सो कैपिटल एक्स ऑफ एच एच, इसमें 2 हेड हैं तो रिप्रेजेंटेड बाई 2. कैपिटल एक्स टेक वैल्यू 2. कैपिटल एक्स ऑफ दिस इवेंट, कैपिटल एक्स ऑफ एच टी, इसमें कितने हेड हैं, क्योंकि मैपिंग रूल नंबर ऑफ हेड्स के लिए है तो 1. ओके, इसी तरह इसका भी 1 होगा, इसी तरह इसमें 0 होगा क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है, तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल टेक्स वैल्यू 0. तो आप इसको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं. ये पास सैंपल स्पेस है, इसके ये सारे इवेंट्स हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ओके, अब क्या होगा, रियल लाइन पे नंबर 0, 1 एंड 2. तो टेल टेल मैप टू 0, टेल हेड एंड हेड टेल मैप टू द 1 according to mapping rule, and head event is mapped to the 2. Okay, so you understand how to define the random variable and its sample space and how to assign a value to the random variable. Okay, अब क्या है कि कैपिटल एक्स टेक्स values 0, 1 and 2, that I can say that 0 is x1, 1 is x2 and x3 is 2. Okay, so let us count the probability, let us calculate the probability of events. Probability of capital X takes value 0, ये कौन सी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल. ओके, और एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो ईच ट्रायल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी, 1 एंड हेड, तो 1/2. ओके, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स. ओके, तो ये हाफ है, और दोनों टॉस जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इफ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, because both events are independent, so probability will multiplied. Okay, so probability will be 1/4. Okay, probability of capital X takes value 1 will be equal to sum of probability of head tail plus probability of tail head. Okay, head tail, tail head दोनों इवेंट है. जब ये कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यू 1, ये 2 पॉसिबल इवेंट है, हेड टेल हो या टेल हेड हो. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ओके, सो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज हाफ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ. And if you simplify, I will get probability of x, capital X takes value 1 is half. Okay, probability of capital X takes 2 will be equal to probability of the event head head. दोनों, that will be probability of head multiplied with probability of head, and that will give probability of 1/4. Probability of x is equal to 2 equal to 1/4. इस तरह जो रैंडम वेरिएबल्स वैल्यू टेक्स कर लेता है, उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो इसका पीडीएफ डिफाइन करें कि रैंडम वेरिएबल कंप्लीटली कैरेक्टराइज या डिस्क्राइब बाय इट्स पीडीएफ. तो डिस्क्रीट पीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड. सो इसमें पॉसिबल इवेंट्स वैल्यूज कितने हैं रैंडम वेरिएबल को, 3 है. ओके, x1, x2, x3, वो जो यहाँ पे मैंने बताया है. x1 इज सॉरी, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 2. ओके, ये 3 है. समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 एंड p ऑफ कैपिटल एक्स टेक्स इक्वल टू x1 into direct delta function del of x minus xi. This is how to write the PDF or discrete random number. Expand this summation. So when I equal to 1, so probability of x equal to x1 into del x minus x1. When I is equal to 2,
that can be written as probability of capital X equal to x2 into del x minus x2, I equal to 3, probability of x equal to x3 into del x minus x3. Now substitute value of x1 is 0. Now substitute value of x2, that is 1. Now substitute value of x3, that is a 2. Now probability of capital X equal to 0 is 1 by 4. This is del x minus 0 plus probability of capital X equal to 1, that is half, into del x minus 1. Probability of capital X equal to 2, that is 1 by 4, del x minus 2. After simplification, we can write this. This is a probability of random variable x that denote the number of heads in a two fair toss of the coin. ओके, अब इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. ये फंक्शन है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में 1 by 4 इज एरिया ऑफ दिस पल्स. 0 पे del x minus 1 impulse will exist at 1. A height area of this under this impulse will be 1 by 2. और यहाँ पे del x minus 2, यहाँ पे एक impulse होगा 1 by 4 and remaining places it will be 0. Okay, so this is plot of PDF of discrete random variable. Okay, take another example to understand how to describe a random variable. A fair die is tossed. Let the random variable y represent a number in the face of the die. So number of face in die in this experiment, number of sequences are finite, countable sequences. So इसमें क्या होगा 1 to 6 इवेंट्स होंगे. मतलब 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6. इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे तो क्या आउटकम आएंगे. जो आउटकम होते हैं सैंपल पॉइंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के. तो 1 2 3 4 5 6 आर द सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस. सो मैपिंग रूल है कि y रिप्रेजेंट द नंबर इन द फेस ऑफ द डाई. ओके, the capital Y of 1 equal to 1, capital Y of 2 equal to 2 according to rule, mapping rule. Y of 3 is equal to 3, Y of 4 is equal to 4, Y of 5 equal to 5, Y of 6 is equal to 6. Okay, so capital Y takes value 1 to 6. I will by small y1 to y6 I will use to represent these value. Y1 is equal to small y1, 1 is equal to y1 equal to 1, y2 equal to 2 and so on. So probability of capital Y equal to 1, डाई को टॉस करने पे कोई फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि फेवरेबल कोई नंबर आने के उसके फेस पे 1 by 6 होती है. ओके, 1 by 6. ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y of 6, दैट इज आल्सो 1 by 6. इक्वल प्रोबेबल इवेंट्स है. ओके, सो दिस वे नंबर ऑफ वैल्यू टेकन बाय कैपिटल Y 6. नंबर कितनी वैल्यूज ले रहा है 6. तो समेशन की लिमिट अपर लिमिट इज 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, so this can be a probability of इसको डिफाइन करना है इसका रैंडम है क्योंकि रैंडम वेरिएबल कंप्लीटली डिस्क्राइब द
PDF completely describe the random variable. So capital F of y, that is a PDF of this discrete random variable y, is a sum of probability of y equal to y1 into del y minus yi. Expand this summation, and after simplification we will get this expression. Now I will discuss continuous random variable. A random variable is said to be continuous if it take any value from a continuous interval such that f of x into dx integration from minus infinity to plus infinity should equal to 1. F of x is the PDF of this continuous random variable. Okay, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में एरिया इज इक्वल टू सम. ओके, तो इसलिए डिफाइन के लिए इंटीग्रेशन उसमें भी वैलिड है. सो बस इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस इंटरवल और अनकाउंटेबल, उसमें कितनी वैल्यूज हैं? 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन काउंटेबल होंगे. जैसे 0 से डिस्क्रीट ओनली इंटीजर या जो भी रियल नंबर ले रहे हैं फाइनाइट ले रहे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में. ओके, सो एरिया ऑफ दिस PDF शुड बी 1. एरिया अंडर दिस PDF शुड बी 1. इसका मीनिंग है, इंटीग्रेशन का मीनिंग. ओके, एग्जाम्पल इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. ये बहुत जगह यूज होगा, और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. Various natural phenomena follows the Gaussian distributions. और Gaussian distribution की PDF, Gaussian distribution is a distribution which completely characterized by its parameter mu and sigma square. Mu is the mean and sigma is the variance. And PDF, well known, its PDF is given f of x equal to 1 by square root 2 pi sigma square into exponential minus x minus mu square divided by 2 sigma square. ये PDF है, PDF एक्सप्रेशन है गॉसियन रैंडम वेरिएबल को. इसको आपको रिमेंबर करना हो, बहुत जगह यूज होता है. और गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ये 2 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होता है इसकी PDF, मीन एंड वेरिएंस से. अब इसको प्लॉट देखेंगे तो ये है प्लॉट ऑफ दिस गॉसियन रैंडम वेरिएबल. बेल शेप का है. एट दिस इज वाई एक्सिस, नो नॉट वाई एक्सिस, ये म्यू है. म्यू के अराउंड ये सिमेट्रिक है. ओके, इस साइड जो एरिया है और ये साइड का एरिया बराबर है म्यू के अराउंड. ओके, और इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम minus infinity plus infinity of x, that will give 1. If you integrate from minus infinity to mu f of x, that will be half. Okay, ये कैलकुलेशन में कभी कभी यूज होगा. मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल. मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड continuous random variable. Random variable may also be mixed type. In this case, random variable takes continuous value, but each finite number of points there is finite probability. Example के लिए मैं एक प्लॉट करता हूँ. जीरो टू 20. दिस इज PDF. अब इसमें फाइनाइट पॉइंट्स पे इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ओके, 1, 4 या 5. तो ये एग्जांपल ऑफ दिस मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल. ये क्या है, कुछ भी हो सकता है. ओके, PDF completely describe a random variable. Okay, now we will discuss
probability distribution function of a random variable. Probability distribution function also completely describe the random variable. It is defined as probability of event capital X takes value less than equal to small x is called probability distribution function. So denoted by capital F of x. This is used for denoting probability distribution function that is equal to the probability of events capital X takes value less than equal to small x. ओके और ये प्रोबेबिलिटी है तो यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. उसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. एंड दिस probability distribution function is also known as alternative name is cumulative distribution function also. CDF भी बोलते हैं इसको. So f of x for given CDF या distribution function we can find probability of any event involving values of random variable. यदि आपको किसी random variable का CDF या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है तो रैंडम वेरिएबल जो कोई भी इवेंट्स वैल्यूज इवेंट्स को मैप किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इजीली यू कैन फाइंड. ओके सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब ये इस नेचर का होगा इस तरीके का, ऐसे 0 से लेके 1. एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है. ऑलवेज वैल्यू इफ एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू इंक्रीजिंग देन दिस प्रोबेबिलिटी आल्सो इंक्रीज. दिस f of x is equal to probability of event capital X takes capital X less than equal to x event का प्रोबेबिलिटी होता है. तो इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. ये पूछा भी जाता है कि CDF is a decreasing and non-increasing function. It is a non-decreasing function. Non-decreasing या increasing function you can say. F is a right continuous. It means f of x approach its value from right side, और f of x minus infinity ये इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन माइनस स्मॉल x. ये क्या नल सेट है? नल सेट का इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नल is 0 always. Okay. इसी तरह f of x infinity can be called probability of capital X less than plus infinity. It means probability of sample space. क्योंकि कैपिटल S लेस देन, क्योंकि कोई भी रियल मान ली x इज रियल रैंडम वेरिएबल तो ये लेस माइनस इन्फिनिटी से प्लस में सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो वो पूरा सैंपल स्पेस होगा. तो probability of sample space is always 1. Okay, if you want to probability in between probability of this event that capital X greater than x1 but less than equal to x2, that can be obtained by subtracting probability CDF at point x2 minus CDF at x1. तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि CDF पता है यू कैन इजीली कैलकुलेट. प्लॉट द CDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. सो हम एक जो पिछला एग्जांपल फेयर कॉइन इज टॉस उसी रैंडम वेरिएबल का हम CDF प्लॉट करेंगे. ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, लेट रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स. Find the probability distribution function capital F of x of random variable capital X. The sample space of this experiment, a fair coin is tossed twice, head possible events, head head, head tail, tail head, tail tail. Okay, मैपिंग मैंने एक्सप्लेन ही किया था. नंबर ऑफ हेड के अकॉर्डिंग कैपिटल X टेक्स वैल्यूज फॉर दिस इवेंट कैपिटल, फिर मैपिंग करेंगे कैपिटल x of hh that will given equal to 2. ओके, इस तरह से सारी वैल्यूज दे देंगे. तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स वैल्यू 0
1 and 2। अब क्या होगा, हमें आपको इस CDF एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना, और आपको पता है कि CDF इज f of capital F of x is equal to probability of capital X, probability of this one capital X less than equal to small x। ओके, तो ये वैल्यूज कितनी ले रहा है, 0 1 2। ओके, सो इस ये इवेंट को कुछ सब इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, यदि मान लीजिए फॉर स्मॉल एक्स लेस देन 0, सो दिस इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम है, मतलब -1 से लेके -∞ के बीच में कुछ भी कैपिटल एक्स डजंट टेक एनी वैल्यू, सो दिस इज नल सेट। ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी capital F of x for this when small x less than 0, that will be 0। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, that is equal to probability of event phi is a null set। ओके, so it will be 0। अब इसको हम स्मॉल एक्स की कई सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। नाउ अब बढ़ा देंगे कि मान लीजिए स्मॉल एक्स टेक्स वैल्यू greater than equal to 0 but less than 1, and then what is the event in this event, capital X less than equal to x, टेल, क्योंकि less than 1 और greater than equal to 0 में स्मॉल एक्स इक्वल टू 0, सो ये वाली इवेंट आपकी एग्जिस्ट करती है। तो कैपिटल F of x will equal to probability of capital X less than equal to x, this is equal to the probability of टेल। इसको इजीली यू कैन कैलकुलेट, इंडिपेंडेंट है। अब इस अपर लिमिट को बढ़ाते हैं, स्मॉल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। सो जब स्मॉल एक्स इस रेंज में वैल्यू लेगा तो इवेंट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स में कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 0 भी आ सकता है उसमें, तो 0 के करस्पॉन्डिंग टेल इवेंट था, हेड 1 के करस्पॉन्डिंग हेड टेल एंड टेल हेड था। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ yes CD of f of x equal to the probability that capital X less than equal to is a sum of probability of these three events, probability of टेल plus probability of head टेल, probability of टेल head। Substitute all the value, I will get 3/4। Now I will another interval like this, greater than 2 less than infinity, yeah you can write small x greater than equal to 2। so इसमें क्या देन कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x में क्या क्या इवेंट आएंगे, इक्वल टू 2 है तो उसमें जब आप इसको करोगे s लेस देन 2, सो इसमें इंक्लूड होगा कि कैपिटल X टेक्स वैल्यू 0 1 और 2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स इसमें आ जाएंगे जो इस एक्सपेरिमेंट को जो रैंडम वेरिएबल x मैप किया है, एंड दिस इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, बाय कैलकुलेट भी कर सकते हो और ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज 1। सो probability distribution function capital F x is given by for ये गलत लिखा हुआ लिमिट, दिस शुड बी x लेस देन 0। ओके, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के बीच में 1/4 होगा, और 1 स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 के केस में ये 3/4 वैल्यूज लेगा, एंड स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट इज
1। अब इसको यूनिट स्टेप फंक्शंस में लिख सकते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि जब स्मॉल एक्स लेस देन 0 इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 ग्रेट इक्वल टू ये जो ग्राफ है करस्पॉन्डिंग लेस देन 1 से पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, यहाँ तक 1 होगा। फिर जैसे 1 आएगा उस पर 1/4 में 1 की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, ये है आपका हाफ। ओके, तो हाफ ऐड होगा तो 3/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिस इज हाफ, यहाँ लिखा भी है। अब फिर क्या प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 के केस में 1/4 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1 अप टू इन्फिनिटी। तो स्टेप फंक्शन में इसको लिखेंगे 1/4, यू कैन राइट दिस इज 1/4 u ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे स्टेप फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम, ये स्टेप फंक्शन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक अनदर स्टेप फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 पे स्टार्ट होने वाले स्टेप फंक्शन को लिखते ux-1, और ये जो ट्रांजिशन है 3/4 माइनस 1/4, या हाइट चेंज दिस इज इक्वल टू हाफ। ओके, सिमिलरली हियर यहाँ पे स्टेप फंक्शन जो स्टार्ट होगा दैट इज x-2, एंड ये 1 में से 3/4 डिक्रीज सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 1/4। तो इस तरह से स्टेप फंक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी कोई आंसर स्टेप फंक्शन में पूछता है लिखने को तो आप लिख सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इफ distribution function capital F of x is differentiable, then PDF of a random variable given by this small f of x is the first derivative of capital F of x. Okay, or another relation between PDF and CDF given by this. Okay, capital F of x, that is equal to probability that capital X less than equal to small x, and that can be calculated by this integration, integrating f of x in between minus infinity to small x. So I will get the CDF expression. यदि आपके पास CDF यदि आपका PDF पता है तो you can obtain the CDF by integration. If you know the CDF, if you want to PDF, you differentiate the CDF one time and you will get the PDF. F of x is a non-negative function of x. Okay, and if you are integrating f of x from minus infinity to plus infinity, that should be 1. Generally ये एक इवेंट्स को x प्लस डेल x, ये मान लीजिए पीडीएफ है f ऑफ x। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप के बहुत सारी इवेंट्स की ये कंटिन्यूस है, तो बहुत सारी इवेंट का सम शुड बी 1 पीडीएफ, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज 1. Okay, so this is explanation of this integral from f of x integrating from minus infinity plus infinity should be 1. One dimensional रैंडम वेरिएबल है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो ये एरिया होता है। डबल जॉइंट पीडीएफ होगा तो उस केस में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम शुड बी यूनिटी लाइक दिस. So probability of event capital X greater than x1 less than equal to x2 can be obtained by integrating f of x in between x1 to x2. Okay,
and a random variable is completely described by either PDF f of x या CDF capital F of x. ओके, सो ये लेक्चर आपका फिनिश हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.